And I think, okay, I guess I'll start now. It's 3:05. And if any more people join in, they can just watch from where we are. I'll just introduce myself first. My name is Anuja Trivedi, and I'm from Lucknow, UP, and I cleared UPSC CSC so I wrote my first attempt in 2020, where I cleared prelims and I didn't clear mains. Then I wrote my second attempt in 2022. तो तब मेरा 241 रैंक आया था और मेरे को IRS मिला था. एंड फिर मैंने ज्वाइन मतलब मैंने लीव ले लिया था एंड देन आई रोट इट अगेन इन 2022 और तब मेरा 80 रैंक आया था एंड आई गॉट IAS एंड राइट नाउ आई एम इन एडमिट कार्डर and मेरा भी district training चल रहा है. So first of all, thanks to Parjyoti IAS because they approached me to take this session on answer writing. So before we begin, I would just like to say that I understand that इस समय जो लोग भी prep कर रहे होंगे उनके पास बहुत सारे doubts होते हैं, बहुत सारे reservations होते हैं, बहुत सारे sources हैं, कहाँ से क्या करना है समझ नहीं आता, कौन सा टेस्ट देना है, कैसे करना है, क्या करना है. So I just want to say that all the stress that you are feeling or all the doubts that you have, those are all very valid and सब कुछ valid है और सब कुछ सबके साथ होता है. तो there is no need to take a lot of stress. Just try to focus on your schedule. जो भी आपका schedule है, जो भी आपके mentors ने आपकी help करके बनवाया है, उस शेड्यूल पे फोकस करना है. जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज आप हमेशा से लेके चल रहे हैं उनको लेके चलना है, अपने नोट्स को लेके चलना है, रेगुलर आंसर राइटिंग करते रहना है, उनको चेक करवाते रहना है, एक आधी पेपर दे दिया बीच में, सिलेबस रिवाइज करते रहना है. एंड लाइक दैट इज ऑल टू द प्रेप. देयर इज नो एक्स्ट्रा समथिंग जादू दैट यू हैव टू डू जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं. जस्ट योर नॉर्मल रूटीन विद a lot of hard work and smart work is enough. So just like I just want to say that upfront so that I don't want you all to take too much stress. That's the only thing, right? So that's just one thing that I would like to say before I start with this session. So today's session is I will just can everyone see my screen? This live answer writing session polity likha hua hai. If you all can just say yes. No, it is not No, ma'am. visible as of now. It's not visible. Okay, I think I didn't share them. I'll stop sharing. 1 second. अभी दिख रहा है? Yes, ma'am, it is visible now. दिख रहा है ना? Great. Okay. So anything else anyone wants to say before we start out? किसी को भी ऐसे कुछ in general कुछ पूछना हो या किसी चीज पे फोकस करना हो throughout this video तो मुझे बता सकते हैं. मैं उस हिसाब से फिर ये सेशन लूंगी. So like feel free to say, speak. Everybody's all good to start? Yes, ma'am. Okay. Chalo, we'll just start with the session then. So today we will be looking at answer writing कैसे करते हैं. Polity में ये थोड़ा polity focused होगा but इसके बहुत सारे points you can apply to GS 1, 3, 4. 4 में थोड़ा कम but 1 and 3 में आप भी लगा सकते हो ये. ठीक है? तो let's start with the first question. So this question अब देखो ऐसा है कि यूपीएससी डज नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग करेंटली. तो जैसे कुछ अगर लास्ट टाइम सीबीआई का भी कुछ ऊपर नीचे चल रहा होगा तो दे विल आस्क सीबीआई एंड आई नो दैट दिस इज इन न्यूज राइट नाउ राइट कि यूपीएससी की फंक्शनिंग एज द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ करंट अफेयर्स हैपनिंग, अ लॉट ऑफ things are being covered in this domain and other competitive exams also जैसे नीट वगैरह भी हो गया. तो आजकल ये न्यूज में है कि जो हमारे एग्जाम सिस्टम्स हैं वो कितने थरो है, कितने फेयर है, कितने ट्रांसपेरेंट है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यूपीएससी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग दीज थिंग्स कि ये कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव है या ऐसा है तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, वो पूछ सकते हैं. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. So the first question here is that mentioning the functions that are performed by the UPSC, discuss its working as the watchdog of the merit system in India. So whenever you start, before you start writing any answer, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है. मतलब थोड़ा सा दिमाग शांत करके
5-10 सेकंड लगा के आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज अदरवाइज यू माइट मिस आउट ऑन समथिंग्स विच कैरी मार्क्स। मतलब ऐसा नहीं कि यूपीएससी देखा और फिर यूपीएससी के बारे में ही कुछ लिखना चालू कर दिया, ऐसे नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। वी हैव टू मेंशन, ठीक है, वी हैव, व्हाट डू वी हैव टू मेंशन? वी हैव टू मेंशन द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय यूपीएससी। तो हमें फंक्शंस बताने हैं। एंड डिस्कस इट्स वर्किंग, तो हमें वर्किंग भी बतानी है। एंड किस कॉन्टेक्स्ट में बतानी है? एज द वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। तो ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, बट हमें बताना क्या है? हमें बताने हैं फंक्शंस यूपीएससी के और उसकी वर्किंग, और वो कैसे मेरिट सिस्टम को वो करता है, सेफ गार्ड करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट शुड आवर अप्रोच बी? सो एज आई सेड, पहले हमें सबसे पहले तो बताना है कि यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है। एंड दिस इज अ वेरी गुड, आई वुड नॉट से ट्रिक बट हैबिट टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग पॉलिटी के आंसर्स, कि तुमसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कोई बॉडी या किसी भी चीज के बारे में पूछा गया है, आपको उसका आर्टिकल, सेक्शन, पार्ट जो भी है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा हो, यूपीएससी के बारे में पूछा, कुछ किसी के बारे में पूछा, आर्टिकल पता होना चाहिए। और आर्टिकल आप इंट्रोडक्शन में ही लिख दीजिए with one introductory sentence about that body or about that system. Then of course you will mention its functions because the question has asked. Then उसकी वॉचडॉग जो है वो कैसे वॉचडॉग की तरह वर्क कर रहा है, तो इसमें वर्किंग और वॉचडॉग दोनों कवर हो जाएगा। देन हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात करें कि हाँ इसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, then we also have to keep in mind that we are giving a comprehensive answer to the question. So we will not just give one side that yes, it should do this, and it does this, and everything is fine. We have to mention limitations. And then if it's a 15 marker, then you will write a way forward as a separate part of the answer. उसको आप अलग से बनाएंगे, बट अगर ये क्योंकि 10 मार्क का है तो इतना ना टाइम है ना स्पेस है, तो आप वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन में ही वो कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन like good habit to keep in mind, that in 10 markers, if you don't have time or space to write a way forward or corrective steps or positive what we can do going ahead, just use that as a conclusion. That way your conclusion will also have good hefty points and way forward भी cover हो जाएगा. So now when we start with the introduction, तो UPSC is the central recruiting agency. यहाँ पे आप government भी लिख सकते हो because government की recruiting agency है, with a constitutional status यहाँ पे mention कर दिया, to safeguard its independent and impartial functioning. This is a very good introduction because it's short, it's crisp. इसमें बता दिया है कि आर्टिकल क्या है, करती क्या है, और इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल है कि नहीं है वो भी आगे इन्होंने ऐड कर दिया इस इंट्रोडक्शन में, बिकॉज वी आर राइटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। अच्छा, अगर किसी को लगे कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ या कुछ हिंदी या इंग्लिश में किसी को कुछ लगे तो प्लीज बोल देना, मैं चेंज कर लूंगी उस हिसाब से। तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बॉडी में आते हैं। तो बॉडी में फिर से हम आर्टिकल 320 जो स्पेसिफिक आर्टिकल है वो मेंशन करेंगे, और फिर उसका जो मेन लिख है कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। और फिर इसके जो फंक्शंस एग्जैक्टली हैं वो हमने जो भी याद किए होते हैं लक्ष्मीकांत से वो लिख देंगे ना। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने होते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट। अब इसमें जो आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, please whenever you write this is first point, let us say, please write an example. For example, अब कंडक्ट एग्जामिनेशन का तो बहुत इजी एग्जांपल है, आप वही पेपर लिख ही रहे हो तो यूपीएससी सीएससी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी कोई बहुत सारे पेपर करवाती है यूपीएससी, जितने भी आपको एक आधी याद होंगे क्योंकि इसी इसमें है, एक आधी और पेपर लिख दीजिए। सीआरपीएफ का पेपर होता है जैसे, आई थिंक सीडीएस यूपीएससी कराते, 2-3 पेपर का नाम लिख दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल करके, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज, अगर इसके एग्जांपल पता हो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन, ये सब भी। सो व्हेनेवर in any case if you can write some example, either example or a fact, anything which or a number, any data if you have, हर चीज के लिए डेटा नहीं होगा आपके पास, जैसे जहां पे भी हो बट वहां पे जरूर लिखिए। मतलब ऐसा मत करना कि तुम्हें पता है और तुम लिख के नहीं आए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट अगर पता है तो प्लीज राइट। सो द फर्स्ट में यू शुड 100% राइट एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई एम श्योर एवरीबडी नोज कि कौन से पेपर यूपीएससी कराता है। देन फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स कर सकते हैं आप, डिसिप्लिनरी केसेस कर सकते हैं आप,
एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो पूरा डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है। आपको इसमें से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 4 5 तो लिख ही दीजिएगा 100%, इतना तो आप याद करके जाइए। फिर उसके बाद वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो हियर यू कैन राइट व्हाट इज मेरिटोक्रेसी, क्योंकि इसमें पूछा गया, अब हम डिफाइन भी कर रहे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बेटर टारगेटेड आंसर लगेगा, विच मीन्स दैट यू वांट टू ब्रिंग हाई क्वालिटी पीपल इनटू द सर्विसेज, और इसके लिए हमें हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो आप मेरिट डिफाइन कर दीजिए, हल्का सा एक आइडिया दे दीजिए कि यूपीएससी मेरिट के बेसिस पे लोगों को रिक्रूट करना चाहता है, एंड वो कैसे करता है। नाउ कैसे करता है, नाउ दिस पार्ट वोंट बी लक्ष्मीकांत, एटलीस्ट आई डोंट थिंक इट इज इन लक्ष्मीकांत। दिस इज समथिंग जिसमें अब आपको थोड़ा सा अपना एनालिटिकल दिमाग लगाना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना यार, उसका मोस्टली क्या होता है, उसका फर्स्ट पार्ट आप लक्ष्मीकांत से लिख डालोगे। किसी बॉडी के बारे में आपने आर्टिकल पढ़ रखा होगा, फंक्शंस पढ़ रखे होंगे, 2 3 चीजें पढ़ रखी होंगी, सबने पढ़ रखी होंगी, वो आप अच्छे से लिखिए, उसमें एक आधी एग्जाम्पल डेटा वेटा ऐड कर दीजिए, परफेक्ट। The second part of polity questions usually you cannot pick from Lakshmikant. That you have to pick from your general knowledge, current affairs. आपको जितनी रियल वर्ड्स आप उसको वो कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ओपन एडवर्टीजमेंट होती है कि सबको पता है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हियर ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज राइट एग्जाम्पल्स, कि न्यूज़पेपर में ऐड आती है, न्यूज़पेपर वेबसाइट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। एंड आई नो दैट इट सीम्स ऑब्वियस कि हाँ न्यूज़पेपर में तो ऐड आती है, बट दिस इज व्हाट विल सेट यू अपार्ट, दैट यू हैव टू राइट एग्जांपल्स एवरीवेयर दैट यू कैन। हो सकता है कहीं पे इसके मार्क्स ना मिले, बट काफी चांस है कि इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आपको हर क्वेश्चन में आधा 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा। देन कम सॉरी कंपेटिटिव रिक्रूटमेंट, ये तो हमें पता ही है, लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स। यहाँ पे आप डेटा दे दीजिए। अगर आपको अब ये तो पता ही होगा कि यूपीएससी कितने लोग लिखते हैं, है ना, आई थिंक 11 12 लोग पेपर का फॉर्म भरते हैं, 5 6 लाख देते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट आई थिंक 11 12 लाख इज अ फेयर नंबर, राइट दैट, इट विल सब्सटैंशिएट योर आंसर, ठीक है। इट्स ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसमें भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रिटर्न रिजल्ट आती है, नाम के साथ पूरा लिस्ट आपको मिलता है, हर स्टेज पे आपको नाम के साथ लिस्ट मिलता है, एट द एंड ऑफ द एग्जाम आंसर कीज आर रिलीज्ड, यू कैन चैलेंज यूपीएससी, प्लीज राइट ऑल एग्जाम्पल्स, दीज आर जस्ट 2 3 ऑन टॉप ऑफ माई हेड, आई एम श्योर आप एग्जाम में बैठे होंगे, आपको एक आधी एग्जाम्पल 100% आ जाएंगे। फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कि अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ यूपीएससी का अपना कुछ जो भी आपको थोड़ा बहुत याद हो कि ये मेंबर्स होते हैं, इस तरह से अपॉइंट होते हैं, तो इट इज फेयरली इंडिपेंडेंट। सो इसमें जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ यूपीएससी composition and how it is fairly independent, so that can substantiate its independent decision making, ठीक है। यहीं पे मतलब अगर कोर्ट की बात हो रही होती तो आप लिख देते कि जैसे देखिए ना, इसकी जो फंड्स हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से ऐसे आता है वैसे आता है, तो जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं उसको सब्सटैंशिएट करके अगर आपने 1 2 पॉइंट्स लिख दिए तो दैट इज अ स्टेलर पॉइंट। Then we will talk about limitations. So now this is again coming back to Lakshmikant wala part. It is an advisory body. आप असल में अपॉइंटमेंट नहीं करता, एडवाइस करता है। इट इज नॉट कंसल्टेड, जब आप हाई डिप्लोमा टेम्पररी जॉब्स के लिए नहीं कंसल्ट करते हैं। प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट, सीवीसी की वजह से अब बहुत सारी चीजें सीवीसी हैंडल करता है डिसिप्लिनरी मैटर्स में, तो यूपीएससी नहीं करता है, तो थोड़ा सा उसका जो है लिमिटेशन आ गया है। प्रोविजंस रिजर्वेशन की जो है वो जो है नहीं करता है, यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता है, जैसा कि हमें पता भी है, इतने सारे केसेस पता है हमको जिसमें कोर्ट ने कुछ कुछ बोला है, फिर कुछ लॉज आए हैं, बट यूपीएससी हैज नॉट बीन कंसल्टेड। तो आप ये लिख सकते हैं। ये आप चाहे तो देखिए 50% ऑफ द टोटल रिक्रूटमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड सोशल बैकग्राउंड। तो ये हम ऐसे इस तरह से फ्रेम करने की जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन reservations फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो उसमें आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनली, यहाँ पे कन्वेंशनली डिफाइंड मेरिट कर सकता है, बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन कि मेरिट है क्या एग्जैक्टली मेरिट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि आप अगर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हो
तो आपका मेरिट एंड इन जनरल जो बच्चे हैं उनका मेरिट, हाउ डू यू कंपेयर देम? दे पीपल फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ challenges. So what is a meritocracy? A lot of people say the meritocracy, the myth, etc. We don't have to go into all of that in this question, but when you write something like this, you can also challenge the um, perception of merit in some sense. कि वो मेरिटोक्रेसी का वॉचडॉग तो है, बट मेरिट क्या है? 50% रिक्रूटमेंट जो है वो हमारा अगर वैसे किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वीकर सेक्शंस को साथ में रखते हुए, तो कन्वेंशनली डिफाइंड मेरिट जो है वो ही नहीं एग्जिस्ट करती है. तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. Do not write anything which goes against the policy, which goes against constitutional ideals. उनको नहीं चैलेंज करना होता है इन आंसर्स. लाइक हम वी वांट टू बी सिविल सर्वेंट्स, वी वांट टू वर्क फॉर द कंट्री. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जिसके अगेंस्ट बोलना is not something that we would like to do in our answers. UPSC is a constitutional body and its advice should be given primacy. This you can avoid. There is no need to write this. Realizing ideals of good governance depends on effectiveness of civil services, which depends on the effective functioning of the recruiting agency. तो इसीलिए इसकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होनी चाहिए. इसके अलावा इफ यू कैन थिंक ऑफ वन और टू गुड पॉइंट्स जिससे आपने कभी पढ़े हो न्यूज़पेपर में, जिससे यूपीएससी की फंक्शनिंग बेटर हो जाए, एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी बेटर हो जाए, तो एड दैट ऑल्सो इन द कंक्लूजन. तो ताकि आपके कंक्लूजन में कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स हो जाएं कि यूपीएससी बेटर कैसे हो सकता है. तो अगर आप 15 मार्कर में कोई वे फॉरवर्ड लिखते हैं और उसके एक दो पॉइंट्स अगर आपके होते, तो दैट यू कैन यूज इन द कंक्लूजन ऑल्सो. ठीक है. सो आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू दिस एंड फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आप इसमें सारे फंक्शंस, आर्टिकल्स लक्ष्मीकांत से लिखेंगे. वॉचडॉग वाली चीजें जो है वो आप अपने इंडिपेंडेंटली जो सोच सकते हैं, जो भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है उससे लिखेंगे. Limitations would be a mix of Lakshmikant and what you have seen from current affairs, along with as many examples and data points that you can provide. Moving on to question 2. So the question 2 is, what are the various instruments available to the legislature to uphold the accountability of executive? So in this question, again, 5 seconds लेके हम question पढ़ेंगे. What are the various instruments? So now we know कि हमें instruments की बात करनी है. अवेलेबल टू द लेजिस्लेचर. सो हमें पता है कि लेजिस्लेचर के पास कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे टू अपहोल्ड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, जिससे हम जो एग्जीक्यूटिव है विच इज बेसिकली द गवर्नमेंट, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे अपहोल्ड कर सकते हैं. सो नाउ योर माइंड शुड गो टू कि ये क्वेश्चन है अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि आपने पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, पार्लियामेंट में पढ़ा होगा और कैबिनेट में पढ़ा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ा होगा. क्योंकि कैबिनेट में, पार्लियामेंट में आपने लेजिस्लेचर की पावर्स पढ़ी है, और क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट वगैरह चैप्टर में आपने गवर्नमेंट की पावर्स पढ़ी है. तो लेजिस्लेचर के पास ऐसी कौन सी पावर्स है जिनसे हम एग्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. दिस शुड इमीडिएटली क्लिक इन योर हेड व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन. इट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इट्स अबाउट बैलेंस ऑफ पावर्स. ठीक है, checks and balances. ठीक है. So now what our approach can be that we can explain the need for executive accountability. क्योंकि अगर यहाँ पे ने पूछा है कि आपको accountability uphold करनी है legislature को, तो क्यों करनी है, तो you can emphasize on the importance of executive accountability. Then you should obviously mention the various instruments available to legislature to uphold the accountability of the executive, and then give a balanced conclusion. So that in the introduction, now this is a comprehensive introduction, you can cut it short. This now is a very good word to use over here. हम parliamentary democracy लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि in, for example, an easier thing to do would be to write in our country, है ना. बट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब आप लिखते हैं तो यू मेंशन, यू आर एम्फसाइजिंग ऑन पार्लियामेंट्री. और क्योंकि यहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करी गई है, आप यहाँ पे पार्लियामेंट्री लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी दैट हैज अ मेजॉरिटी इन लोकसभा. Legislature must therefore prevent the executive from exercising unlimited and arbitrary powers. तो इतना करके 10 मार्कर में आप रुक सकते हैं. बाकी पूरा तो यही है कि prevent parliamentary democracy from slipping into a cabinet dictatorship. This is also a good word. If you can incorporate this,
इट्स अ गुड कीवर्ड, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इट इज enforced by legislature at various stages during policy making, implementation of law, post implementation stage, ठीक है। तो this in this you have to use some keywords. Parliamentary democracy, cabinet dictatorship is a good point, and different ways, different stages जहाँ पे ये accountability enforce होती है, accountability क्यों जरूरी है, इनसे दो तीन चीजों को उठा करके आप एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। नाउ वी कम टू द बॉडी। सो अगेन इसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में हमने कीवर्ड्स दिए, अब हम बॉडी में जाएंगे तो बॉडी का पहला पार्ट वही होता है जो लक्ष्मीकांत से आप उठा सकते हो यूजुअली। तो ये सब आप लक्ष्मीकांत से उठा सकते हो कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कि डेलिब्रेशन और डिस्कशन होता है, तो कोई भी पॉलिसी है वो जो है उठाई जाती है पार्लियामेंट में, संसद में, वो सब डिस्कस होता है, काउंटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन होता है ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देन ऑफ कोर्स यू हैव क्वेश्चन आवर्स जहाँ पे मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना होता है, 0 आवर होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन होती है, adjournment मोशन होती है, ठीक है। अप्रूवल एंड रैटिफिकेशन ऑफ लॉज, a bill can only become a law only with the approval of the parliament, that both लोक सभा एंड राज्यसभा। तो इसमें आप ये लॉज वाली बात आ गई। पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि स्क्रूटिनी करती हैं ऑफ द बिल्स जो कि यूजुअली गवर्नमेंट की तरफ से बन के आते हैं, कैबिनेट की तरफ से बन के आते हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाता है। So that is also, so this is mostly about the legislative functions. Financial control भी है, इसमें हम बजट की बात करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे आपको जहाँ पे भी याद होना कोई भी आर्टिकल्स, प्लीज आर्टिकल लिखिए कि मान लो अगर आपको बिल का पता है, अमेंडमेंट का हमने कुछ बात करा है, 368 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज का अगर आपको नंबर पता है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए पार्लियामेंट्री कमेटी का एग्जाम्पल तो आपको पता ही, पक्का पक्का पक्का, प्लीज राइट पार्लियामेंट्री कमेटी का एग्जाम्पल ओवर हियर। प्लीज राइट कोई भी आर्टिकल, अगर इसमें आप अमेंडमेंट की बात करें तो उसका आर्टिकल कौन सा है। फाइनेंशियल कंट्रोल है तो प्लीज राइट बजट का आर्टिकल, राइट। सो लोकसभा डिस्कस करता है स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ पूरा बजट पीस बाय पीस डिस्कस होता है, और दे कैन रिफ्यूज टू वोट। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स होती है, जैसे सीएजी की रिपोर्ट होती है, पब्लिक अकाउंट्स की रिपोर्ट होती है, ये सारी रिपोर्ट्स जो है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है, ये डिस्कस होती है। तो कोई मिसयूज ऑफ फंड्स हो रहा होगा तो दैट कैन ऑल्सो बी चेक, सो दिस इज अंडर फाइनेंशियल कंट्रोल। नो कॉन्फिडेंस मोशन और मोशन ऑफ थैंक्स आप लेजिस्लेटिव के साथ नहीं लिख सकते। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पता ही है कि इफ द हाउस डज नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ओवर हियर ऑफ एनी ईयर दैट यू रिमेम्बर जिसमें सरकार गिर गई हो बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, अगर आपको याद हो तो। आप सरकार का नाम लिख सकते हैं, साल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स वो प्रेसिडेंट डिलीवर करता है, जिसमें मतलब एंड देन द हाउसेस वोट की अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो अगेन आवर आंसर इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वी हैव गिवन एवरीथिंग, यू कांट गिव एवरीथिंग। सो जस्ट लेजिस्लेटिव के अंदर आपने तीन चार चीजें दे देनी है, फाइनेंशियल नीचे तीन चार चीजें दे देनी है, जितना भी आपको वहां पे याद आए। एंड अगर आपके पास उतना टाइम ना हो तो आप सीधे ये भी कर सकते हैं कि आपने ये लेजिस्लेटिव का बनाया, इसमें ऐसे ऐसे करके मोशन ऑफ थैंक्स, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लिख दिया। आपने एक फाइनेंशियल का बनाया, उसमें ऐसे 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 कर दिया। तो अगर आपके पास सब कुछ लिखने का टाइम ना हो तो लेजिस्लेटिव आपने पूरा पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, एंड बाकी थोड़ा बहुत आप फ्लो चार्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू यूज more keywords and more examples and more data rather than just words. इंग्लिश लिखनी नहीं है हमें, हम पूरा बहुत सारा इंग्लिश लिखेंगे उसका उतना पॉइंट नहीं है। टू द पॉइंट सेंटेंसेस होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए जिनका मतलब निकल के आता हो, जिसमें कीवर्ड्स बनते हो, जिसमें डेटा बनता हो। बिकॉज खट 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 पेपर चेक ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर इन्होंने डायरेक्टली कंक्लूजन दिया है। अब कंक्लूजन में जैसे क्वेश्चन अगर हम फिर से पढ़ते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं कि नहीं करते, तो आप इसमें चाहो इफ यू हैव टाइम और इफ इट्स अ 15 मार्कर then you can write some limitations कि कहाँ कहाँ पे नहीं हो पाता है। For example, if it's a majority government, then the parliamentary check on the legislative will be very less because मतलब मेजोरिटी ही उस गवर्नमेंट की है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वीकन हो जाते हैं। इस तरह से कुछ कुछ लिमिटेशंस आपने जो भी पढ़ी हैं, दो तीन लिमिटेशंस आल्सो यू कैन राइट, and then you can come to the conclusion that yes, parliamentary democracy provides for collective. See, now all of these are keywords: collective ministerial responsibility and ensures a responsible government.
तो ये जो है कीवर्ड्स हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अनदर चेक थ्रू जुडिशरी, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड सब्सटेंसिव पॉइंट। वी हैव टू ट्राई एज फार एज पॉसिबल कि हम सब्सटेंशियल चीजें लिखें, रादर देन कि हाँ मतलब ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट विल फेच यू मार्क्स। सो आपने अगर कोई लिमिटेशंस लिखी हैं तो उनको सॉल्व करते हुए आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशरी लिखा है, बाकी फोर्थ पिलर भी होता है मीडिया, है ना, मीडिया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सर्विस, सॉरी क्या कहते हैं कि जो बाकी एसोसिएशंस होते हैं। सो ट्राई टू give as many different dimensions with substantiative points in your conclusion, right? If anybody has any question और अगर कोई चाह रहा है कि कुछ ऐड हो सकता है इसमें, तो वो आप प्लीज स्पीक अप, एंड उससे बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। तो अगेन जस्ट वी विल लुक एट दिस अगेन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैबिनेट डिक्टेटरशिप, कौन से स्टेजेस पे अकाउंटेबिलिटी है। बॉडी में वी कैन यूज लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वी विल लुक एट ऑल दैट। वी कैन समराइज ऑल ऑफ दिस एंड मतलब हम अपना टाइम शॉर्ट कर सकते हैं अगर हम इसमें वैल्यूडेशन की तरह फ्लो चार्ट बना दें। Then conclusion also I've explained that you give a way forward, you give solutions to the limitations, and you give other dimensions to the same question, such as judiciary, media, non-governmental organizations, right? Okay. Now, coming to the question number 3, we will here also again look at the critical keywords. जैसे critically इसमें keywords है, तो we will look at the keywords. So यहाँ पे हमें critically examine करना है। critically examine का मतलब होता है pros and cons दोनों देना। The procedure, so we have to make sure कि हम इसमें procedural बातें करें through which president of India and France are elected. So I mean I think the first question that comes into your mind जब आप ऐसा question पढ़ते हो कि मुझे फ्रांस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं पता, क्योंकि मतलब कभी नहीं पता वो क्या करे। अब बहुत सारे कंट्रीज है, फ्रांस और यूएस के साथ यूजुअली तो कंपेयर करने के पीवाईक्यूज है। सो माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि आप एक बार ना देख लो फ्रांस, यूएसए, यूके, मन किया तो चाइना देख सकते हो बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो 3 कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, तीनों डेमोक्रेसीज है, इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जहां जहां जैसा भी एप्लीकेबल हो, उनका एक बार आप थोड़ा सा मैंडेट देख लेना कि इनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं या नहीं होते हैं, जैसा भी है, कैसे इलेक्ट होते हैं, और कैसे हम उसको इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, स्पेशली जैसे कि अब यूएसए है, उसका देख लीजिए, वहां इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए करंट अफेयर्स। तो इंट्रोडक्शन हम अब हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच ये होगा कि देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सिस्टम्स दोनों में है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, ऐसे करके हम इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम ऑफ कोर्स बॉडी वुड बी टू द पॉइंट, प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, दोनों में क्या प्रोस कौन से आप ये डिस्कस कर सकते हैं। यह रहा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच प्रोसेस, and then concluding, highlighting the main strengths and weaknesses of each electoral system, and probably you can also conclude by writing that this might be better suited to the French system because of their unique, उनकी कंट्री कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, एंड आवर सिस्टम सूट्स अस, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल, इस तरह का कंक्लूजन, बैलेंस कंक्लूजन आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सी अगेन यहाँ पे हम डेमोक्रेसीज पे फोकस करेंगे। सो इंडिया एंड फ्रेंच बोथ आर फ्रांस आर बोथ आर फ्लरिशिंग डेमोक्रेसीज, और दोनों के पास प्रेसिडेंट होता है एज देयर पॉलिटिकल हेड, बट उनका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का डिफरेंट होता है ओइंग टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटी, या कुछ भी आप इस तरह का करके लिख सकता है। इसमें वही है कि कोई भी फैक्ट एग्जाम्पल देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम लिमिटेड पढ़ते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने का फायदा भी नहीं होता, आरओआई नहीं है। तो जहां आपको नहीं पता बहुत ज्यादा किसी टॉपिक के बारे में, वहां पे इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि आपको जो भी लिमिटेड नॉलेज है, प्लीज ट्राई टू पुट आउट दैट नॉलेज। कि आपको पता है दोनों डेमोक्रेसीज हैं तो लिख दीजिए, आपको पता है दोनों के पास प्रेसिडेंट है ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो उसको लिख दीजिए, and try to make it as substantial as possible. But it's okay if you don't know a lot of facts in this question, because ये question थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब ये है, ये तो क्वेश्चन वही है कि अब हमें पता है कि ये पीवाईक्यू में आ चुका है या जो भी है, तो इसलिए हम प्रिपेयर करके आ गए, इसलिए हमें पता है। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है पता होना कि फ्रेंच nationals 18 and older and they have to have a bank account. This is all very difficult to know beforehand. If you know, that's great. If you don't know, just write India wala
and it's fine. Like, don't write the France wala if you don't know, right? Okay. You can always write like normal things. जैसे of course वो French national तो most likely होना ही चाहिए, right? So try to write whatever you know exactly. जो नहीं आता वो छोड़ सकते हैं. तो एज एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया. प्रपोजर्स फॉर नॉमिनेशन, अब इसमें इंडिया वाला आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इंडिया वाला तो आप लिख ही दो कम से कम कि एटलीस्ट ये 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 50 एज सेकेंडर्स. ये इफ यू नो ग्रेट, इफ यू डोंट नो इट्स ओके. जस्ट राइट दैट द नॉमिनेशन हैज टू बी प्रपोज्ड, बिकॉज नॉमिनेशन तो होगा ही, और जब भी कहीं नॉमिनेशन होता है प्रपोज तो करते ही है. सो इफ यू डोंट नो दिस इट्स फाइन, बट कंसिडरिंग जो प्रेसिडेंट यूपीएससी ने सेट करा है, प्लीज ट्राई टू लर्न यूएसए, यूके, फ्रांस. ठीक है. अब यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, पता ही है हमें प्रेसिडेंट का कैसे होता है हमारा इलेक्शन. प्रेसिडेंट हमारे डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, बट इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, जिसमें ये होते हैं. दिस ऑल यू शुड नो बाय हार्ट. एंड ये आपको पता होगा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज. नाउ दिस इज इनफ जनरल नॉलेज, लाइक यू शुड नो दिस एटलीस्ट. अगर आपको ये नहीं भी पता है कोई बात नहीं, बट यू शुड नो दिस. दिस इज जनरल नॉलेज जो कि आप अपने करंट अफेयर से जान सकते हैं. सो राइट दिस. ठीक है, ये तो इंडिया का हो गया. Method of voting, again India, you should 100% know that proportional representation by means of single transferable vote and secret ballot. तो पता ही है. ये आपको अगर पता हो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके. जस्ट राइट दैट यहाँ पे भी डायरेक्ट वोटिंग होता है एंड देयर इज नो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है जैसे उसमें होता है, इंडिया के केस में होता है. ये सब तो नहीं पता होगा कि पेपर बेस्ड प्रोसेस एंड ऑल, बट इफ यू नो दैट इज ग्रेट. स्पेंडिंग लिमिट, अब प्रेसिडेंट के इंडिया में तो कोई स्पेंडिंग लिमिट की बात होती नहीं है, बट अगर आपने पेपर पढ़े हुए हैं, आपने देखा हुआ है, कुछ आपको आइडिया है, तो मे बी आपको ये पता हो कि देयर इज एन अपर लिमिट ऑन स्पेंडिंग व्हिच इज मॉनिटर्ड बाय अ कमिटी. ईच कैंडिडेट मस्ट हैव द सेम अमाउंट ऑफ एयर टाइम ऑन टीवी एंड रेडियो. तो अगर आपको पता है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं. हाँ, सो जस्ट टू रीआइटरेट, हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के इलेक्शन के कंपैरिजन का अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है. तो इसमें बेसिकली अप्रोच तो यही है. देखो, इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में तुम्हें जितना पता है सब लिख दो. उसमें तुम हेजिटेट मत करो. भले ही तुम्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में तुमको 3-4 चीजें ही पता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. जितना इंडिया के बारे में लिखा है सब लिख दो. एंड वॉट एवर यू कैन थिंक दैट either you know or you know that this is obvious कि ये तो होता ही होगा. Both things you can write. Just don't write like एकदम बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है कि होगा तो मैं उसमें कुछ बहुत ही उल्टा सीधा लिख दिया. ये नहीं करना है. बट कुछ चीजें तो ऑब्वियस होती हैं, तो वो आप लिख सकते हो. ठीक है. ये तो प्रेफरेंशियल वोटिंग की बात करिए कि इंडिया के प्रेसिडेंट में ये होता है. अब ये अगर 2 राउंड्स वाली चीज आपको पता है, यू कैन राइट इट. इफ यू डोंट नो देन जस्ट लीव इट. ठीक है. तो डिफरेंट राउंड्स की बात हो गई. ये जैसे हो सकता है आपको पता हो टर्म ऑफ ऑफिस, तो भले ही क्वेश्चन पूछा गया हो इलेक्शन का, बट आप टर्म ऑफ ऑफिस लिख दो. आपको ये इंडिया का तो पता ही होगा. अगर आपको फ्रांस का पता है, विच इज पॉसिबल कि आपको पता हो, प्लीज राइट इट. इट्स फाइन. In questions where you don't know a lot and there are going to be out of 20 questions, इसमें 2-3 में आपको बहुत कम नॉलेज होगी, बट आपको उसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स लाने. एंड ऑल्सो वन मोर सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव ओवर हियर इज, जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको कम आता है, लीव देम फॉर द लास्ट. पहले आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको आते हैं. और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जैसे मुझे याद है, मुझे वो नहीं आता था GS3 में, जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ आया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था. मैंने वो बस प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा था कि मतलब ठीक है ये थोड़ा ना हबल से बेटर है. मेन तो मुझे इतना ही आता था और कुछ भी नहीं आता था. वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया और उसमें मैंने भर दिए सारे पेजेस, बेसिस वॉट एवर नॉलेज आई हैड ऑफ मतलब फिजिक्स. मतलब मुझे जो भी पता था कि हाँ मतलब क्यों चाहिए हमें टेलीस्कोप, वो भी लिख के आ गई मैं कि. तो उसका हेडिंग आपको फिर इस तरह से बनाना होता है कि why this development is important for space tech, and write 4-5 points, right? So sometimes you don't know anything, but that doesn't mean that you can't write a good answer. You can. So this is also one of ऐसा टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. तो इसमें अब ये पता है कि प्रेसिडेंट तो आप कितनी भी बार बन सकते हो, तो लिख दो. अच्छा ही है, जितना लिख दोगे इस क्वेश्चन में बढ़िया ही है. ठीक है. अब ये इन्होंने पूछा नहीं है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में.
इसका हेडिंग में भी यू कैन राइट इट बेटर एज कि व्हाई इंडिया हैज दिस प्रेसिडेंट इलेक्शन मॉडल एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसमें ये अगेन दिस व्हाई दिस इज अ गुड थिंग टू राइट इन दिस आंसर बिकॉज यू वुड हैव वेरी लेस मटेरियल फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो आप सेकंड पार्ट बना के ये लिख दो कि देखो इंडिया का जो इलेक्शन का मेथड है वो फ्रांस से अलग क्यों है, ठीक है। और उसमें लिख दो कि देखो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हार्मनी में होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इससे प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में जो है टसल हो जाएगी, है ना। हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और अगर हम डायरेक्टली इलेक्ट करा लेंगे फिर पावर नहीं देंगे तो फिर दैट इज ऑल्सो अनयूजुअल। सो एंड देन वी ऑल्सो सेव टाइम एंड अवॉइड एक्सेस स्पेंडिंग, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल हेड तो शी शुड बी अपॉइंटेड, मतलब शी शुड बी इलेक्टेड वाइल सेविंग टाइम एंड अवॉइड एक्सेस स्पेंडिंग, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक हेड है। जरूरी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ही मत लिखिएगा ऐसे कहीं पे भी, स्पेशली बिकॉज आप प्रेसिडेंट राइट नाउ इज शी। सो लाइक ट्राई टू अवॉइड जेंडर प्रोनाउंस। ठीक है, फ्रांस अगर आपको पता हो कि फ्रांस का प्रेसिडेंट ऐसे क्यों इलेक्ट होता है तो आप एक दो पॉइंट लिख सकते हो, पर नहीं पता तो छोड़ सकते हो। ठीक है, and this is a good conclusion. See, their nature and composition of democracies is different. Hence, France and India have chosen different election systems for the post of their presidents. बाकी आप there are challenges related to effectiveness of president's power in India case, ये लाइन चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरह से लिख सकते हैं कि ऑल्दो देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेसिडेंट पावर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनका इलेक्शन का तरीका बताया है दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड वेल सूटेड करके इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज और है, मैं कहूंगी कि इसमें जो है आर्टिकल आई डोंट नो दे हैव आई डोंट नो इफ दे हैव नॉट आस्क्ड, बट इफ प्लीज राइट आर्टिकल्स जो भी आपको याद हो, प्रेसिडेंट का आर्टिकल, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल, कौन कॉम्पोजिशन होती है इलेक्टोरल कॉल, तो जिसका भी आर्टिकल आपको पता है ना प्लीज राइट इट। आई थिंक वी हैव मिस्ड दैट राइटिंग दैट इन दिस। ठीक है, हाँ, ओके। So if anyone has any questions that they can ask, इसमें, otherwise we can move on to the next question. इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे विल आस्क यू टू डिफरेंशिएट कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे क्यों होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे क्यों होता है। तो या तो ये दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करा सकते हैं या कंट्री के विद इन दो पोस्ट के बीच में कंपैरिजन करा सकते हैं। बट इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका सेम है। आप इंट्रोड्यूस करोगे दोनों पोस्ट या दोनों कंट्रीज के सेम पोस्ट के बारे में बात करते हुए कि ये है, थोड़े अलग है, इसीलिए इनका अलग अलग प्रोसेस है। उनका प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए गिविंग articles as relevant from constitutions or laws, sorry, and any example or data that you can think of. Always keep in mind, always substantiate as many points as you can. This will increase your marks like anything. Okay, now we can move on to question 4. Now here, this question is a little bit, matlab I would say analytical. इट इज नॉट स्ट्रेट आउट ऑफ लक्ष्मीकांत कि भाई देखो ये यूपीएससी है, यूपीएससी क्या करता है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कर सकते हैं। दैट इज प्रिटी मच लक्ष्मीकांत बेस्ड विद एडिशनल करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड एप्लीकेशन है इसमें। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेंडर जस्टिस। See, and now again, so that is why this question is a little bit tricky because gender justice बहुत बड़ी चीज है। अब उस जेंडर जस्टिस को आप 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में कैसे इनकैप्सुलेट कर पाते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ गुड यू आर विद पॉलिटी विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है, तो हमने रिलेट कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सपेक्टिव देना है तो ऑब्वियसली हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करनी होंगी, उसके सपोर्टिंग केस लॉस के बारे में बात करनी होगी और जजमेंट्स के बारे में आप बात कर लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम जेंडर जस्टिस के बारे में बात करेंगे। इसमें जेंडर जस्टिस के अलावा किसी और चीज के साथ तो इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए। You have to write about gender justice in the introduction so that the examiner knows कि आप जेंडर जस्टिस के बारे में ही बात करने जा रहे हो आगे वाले क्वेश्चन में भी। यहाँ पे भी आई थिंक लाइक वन ट्रिक दैट यूज्ड टू हेल्प मी व्हेन आई वाज राइटिंग आंसर्स इज जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो ना, जब भी
किसी भी सब्जेक्ट का, 1 2 3 4 ऑप्शनल, ऐसे कुछ भी, आपका एम होना चाहिए टू मेक द एग्जामिनर्स लाइफ इजी, दैट इज योर एम। तो अगर वो पूछे डिफरेंस क्वेश्चन में, तो आपको लाइन खींचनी है और डिफरेंस देना है। अगर वो पूछे रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, लेट अस से पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशन, तो आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें पॉवर्टी यहाँ होगा, न्यूट्रिशन यहाँ होगा, और उसके बीच की रिलेशनशिप आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर रहे होंगे। द एग्जामिनर शुड नॉट बी लुकिंग टू फॉर आंसर्स इन योर आंसर, कि एग्जामिनर अब बैठ के उसको ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है कि कहाँ है आपका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको उनको ऐसे परोसना है कि ये देखो, ये मेरा आंसर है, इस आंसर में वही है जो आप चाहते हो। कट 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 कट, अंडरलाइन, यूज डायग्राम्स, राइट व्हाट इज आस्क्ड, जस्ट मेक द एग्जामिनर्स लाइफ इजी, that will get you a lot of marks even if you don't have that much knowledge for that. That does not mean like don't have knowledge, but present it in that way. ठीक है, that was just general important thing to do. Okay, फिर बॉडी में हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और हम लिखेंगे केस लॉज, एंड देन कंक्लूजन तो भी ना। ठीक है, so how can we start? So we can start by principles of equality and non discrimination, क्योंकि ये directly constitution में है। Principle of equality and non discrimination reinforced by constitutional provisions such as Article 14. Gender justice stands as an imperative, वगैरह वगैरह, seeking to rectify inequities and ensure equal opportunities for all genders. तो आपने यहाँ पे एक तरह से क्या किया है, जेंडर जस्टिस को डिफाइन करा है। ये है जेंडर जस्टिस, जो मैंने पिंक में करा है वो जेंडर जस्टिस का डेफिनेशन दिया है। अगर आप इसे अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं, वेल एंड गुड, यू कैन राइट जेंडर इनजस्टिस, सॉरी जेंडर जस्टिस डिफाइन जरूर करें। एंड देन सेकंड लाइन में आप क्या कर सकते हैं कि फिर जेंडर जस्टिस डिफाइन करने के बाद कि मतलब ऐसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स और थोड़ा सा उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दिया कि इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14। सो दिस इज हाउ अ गुड इंट्रोडक्शन शुड बी। जो उसका कीवर्ड है वो कीवर्ड डिफाइन करके जो क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट पूछा हुआ है उससे रिलेट कर दिया सेकेंड लाइन में, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है ना, दिस इज अ वेरी लाइक परफेक्ट आंसर, बिकॉज हमारे पास टाइम था इस आंसर को प्रिपेयर करने के लिए। हो सकता है आपको इतना ज्यादा परफेक्ट आंसर ना पता हो, बट दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मेट इररिस्पेक्टिव। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हमें इजी बनाना है उनके लिए। ये चेक करना बहुत इजी है। अगर मैं इसकी जगह पे पैराग्राफ लिखने लगूं या इवन पॉइंट्स लिखने लगूं तो टफ हो जाएगा, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनर को फिर कि अच्छा इसने कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल कहाँ लिखा है, अच्छा इसने केस लॉ कहाँ लिखा है, अच्छा किसकी बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत इजी है। हमने जैसे कस्टमरी प्रैक्टिसेस की बात करी तो आर्टिकल 13 की बात कर ली, लॉज इनकंसिस्टेंट जो है वो वैलिड नहीं होंगे। तो वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट जजमेंट रही है। तो वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग मतलब जो है वायलेट हो रहे थे, तो इसलिए इसको आर्टिकल 13 को साइट करते हुए उनको रद्द किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ताकि उनको पता चल जाए। जैसे आप यहीं पे लिख दीजिए विमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स, तो उनको तुरंत पता चल गया, अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट कस्टमरी प्रैक्टिसेस सच एज, then you have given constitutional provision, then you have given case law, which is great. Then you can write about right to equality, article 14 हमें पता ही है। इसमें भी right to equality का एक दो आप केस लॉ जरूर वो कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं, आता होगा पक्का से। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पता है, आर्टिकल 15 पता है, विशाखा आपको पता है अगेन का। सी इन दिस पेज यू नो एवरीथिंग इंडिविजुअली। विशाखा गाइडलाइंस आपको पता होंगी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। आर्टिकल 15 100% पता होगा, और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। What is required is that you can fetch all of these things that are stored in different buckets in your brain to come together in this answer. वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होता है, वो हो जाता है धीरे धीरे, बट ठीक है। देन अगेन हम आर्टिकल वाइज चल रहे हैं, तो इसको सोचना और स्ट्रक्चर करना आसान है। आप 13 14 15 16 ऐसे करके चालू हो जाइए। 16 इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, तो यहाँ पे इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट लिख दिया। यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे बात हो रही हो ना वो वाला कोई केस लॉ कर सकते हैं। इसमें आप जैसे वो भी डाल सकते हैं, परमानेंट कमीशन वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि परमानेंट कमीशन में भी यही हुआ था कि
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। आर्म्ड फोर्सेस वाला जो था, आई थिंक इट वाज पूनिया, somebody that I'm sorry, I don't remember exactly, बट वो वाला केस भी आप साइट कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही साइट करें, बट आपने इतने केसेस पढ़ रखे होंगे कि आपको पता होगा कि कोई ना कोई केस आप लिख पाओगे यहाँ पे। देन राइट टू आर्टिकल 19 पे आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली। सो दिस case law, I think it is highly unlikely that anyone would know, but if you can cite, then that is great. ठीक है, देन आर्टिकल 21 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 21 यहाँ पे वो कर दिया हमने कि क्या होता है, एंड देन अगेन इसमें विशाखा लिख दिया, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। फिर हम डीपीएसपीज पे आ जाते हैं। डीपीएसपीज भी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगेन डीपीएसपीज याद कर लो, रट लो। पॉलिटी के लिए सारे डीपीएसपी याद कर लो, जितने मतलब अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से डीपीएसपी याद कर लो, क्योंकि डीपीएसपी आर सो हेल्पफुल व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट और यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आपको कंक्लूजन लिखना है जल्दी से, या कोई भी पॉइंट सपोर्ट करना और आपको उसका एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पॉइंट का कोई ना कोई डीपीएसपी होगा अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी बहुत हेल्पफुल होते हैं इस चीज में। जीएस2 में प्लीज डीपीएसपी याद कर लीजिए सारे। तो इन्होंने 39A D लिया हुआ है, आपको जो भी याद है आप वो लिख सकते हो। And this case law is that in which it was emphasized that DPSPs are very important for guiding governance and policy making for gender justice. तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें से कोई भी डीपीएसपी उठाइए और उस डीपीएसपी का कोई केस लॉ लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोर्ट ने वो डीपीएसपी कोर्ट किया ही हो, करा हो तो बेस्ट है, बट नहीं भी किया हो तो भी आप लिख सकते हैं। Maternity benefits, see Article 42, Maternity Benefit Act 1961. These are all things that you know. इट इज जस्ट आप कितना सोच पा रहे हैं उस टाइम पे, और आप तभी सोच पाएंगे जब आपको थोड़े बहुत आर्टिकल्स याद हो। 13 से लेकर के कम से कम सारे डीपीएसपी तक सब कुछ याद होगा ना अगर आपको, तो आप उसमें से आराम से 15 पॉइंट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया। जितने भी विमेन को लेकर के लॉज है, आई वुड से जस्ट राइट देम डाउन वन प्लेस एंड वो सब याद कर लो। पॉश याद कर लो, मैटरनिटी बेनिफिट याद कर लो, एमटीपी है जो अबॉर्शन वाला एक्ट है वो भी याद कर लो, सब कुछ याद कर लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे में हेल्प करेगा। विमेन जेंडर वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आएंगे, ये आपका ऑप्शनल भी अगर इस टाइप का है उसमें भी आ सकते हैं, ऑलवेज हेल्प्स। तो यहाँ पे आप पॉश वगैरह भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगे। राइट टू लाइफ में आप वो भी लिख सकते थे, राइट टू लाइफ में आप लिख सकते हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाली चीज भी लिख सकते हो। So whatever laws that you remember about women, those whatever articles, whatever DPSPs, everything that you know about, and not just women, I would like to add over here that it would be a very very good idea in right to life and personal liberty या कुछ भी डीपीएसपी वगैरह में ट्रांसजेंडर एक्ट आया था, राइट दैट। decriminalization जो हुई थी, राइट दैट। because when we are talking about gender, we are not talking about man woman anymore in 2024। तो ये आपके आंसर में एक अलग डायमेंशन लेके आता है, पता चलता है कि यू आर केपेबल ऑफ थिंकिंग इन अ मच ब्रॉडर मोर कंटेम्पररी वे। सो राइट दैट, ठीक है। ये तो अगेन उन्होंने उसी की बात करी है, प्रॉपर्टी राइट्स, बट तो आप ये ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप GS3 वगैरह में कुछ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं विमेन को लेकर के, बहुत ही सारी रिपोर्ट्स होती हैं, एक आधी याद कर लीजिए। जेंडर के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उससे या तो इंट्रो बना सकते हैं या तो कंक्लूजन बना सकते हैं। सो इनफैक्ट अगेन दिस इज जनरल पॉइंट, 2-3 रिपोर्ट्स ना कॉमन चीजों के बारे में पढ़ लो। ग्लोबल वार्मिंग हो गया एक, ठीक है, जेंडर हो गया एक, पॉवर्टी हो गया एक, न्यूट्रिशन या हंगर हो गया, इन सब की बहुत ही क्लासिक रिपोर्ट्स हैं दैट आर वेरी वेल नोन। एंड जस्ट रिमेम्बर कुछ भी डेटा पॉइंट उसमें से एंड यूज दैट, स्पेशली इन GS2 एंड GS3 बहुत काम आता है। these are some quotes that you can use in your conclusion। छोटा सा कुछ याद कर लो, ये छोटू सा है, अच्छा है, याद कर सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड में अगेन, इसमें वे फॉरवर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये अब मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि ये सब बता देंगे कि हाँ देखो पॉलिसी इंटीग्रेट करो, डेटा कम्युनिटी, ये सब बता देंगे मोस्टली। 4-5 वे फॉरवर्ड कोई भी लिख देगा, बट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको सब्सटैंशिएट करें। जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन बी कंसिडर्ड एज डन इन राइट अ कपल ऑफ स्टेट्स का नाम, ठीक है। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में
जैसे कि आप लिख सकते हो कि जब हम जैसे SC ST वाला होता है डेटा कलेक्शन, जब हम सेंसस का कलेक्ट करते हैं तो उसमें कैन वी डू समथिंग, और मे बी यू कैन राइट डेटा कलेक्शन में कि डेटा आंगनवाड़ी से कलेक्ट करके कुछ कुछ एग्जाम्पल, कोई अच्छी स्टडी अगर आपको पता है जहाँ पे अच्छी तरह से डेटा कलेक्ट किया गया हो जेंडर को ध्यान में रखते हुए, राइट दैट एज एन एग्जाम्पल. That is the key. Data collection analysis, everybody will write. What will set you apart is what you have given as an example for this data collection exercise. Community engagement में आप लिख दो कि PRIs, or maybe like see like the 33% reservation for women in PRIs से community engage होती है. Write that. That is what is going to make your answer shine. तो यहाँ पे आपने जैसे PRI कुछ लिख दिया, आंगनवाड़ी लिख दिया, आशा लिख दिया, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात हो रही थी इसलिए. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आपने लिख दिया जैसे कि मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया, एसएचजी बैंक लिंकेज, बिकॉज एवरीबडी विल राइट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पता है, सबको पता है. जेंडर रिस्पॉन्सिव सर्विसेज, जिसमें हेल्थ केयर, शेल्टर, सोशल सपोर्ट जो है उसमें एक जेंडर का भी डायमेंशन हो, जैसे कि वो वन स्टॉप होम्स क्या होते हैं फॉर सर्वाइवर्स ऑफ अब्यूज, दैट इज अ जेंडर रिस्पॉन्सिव सर्विस. 1090 है यूपी में, सर लाइक इट्स अ हेल्पलाइन फॉर women, that's a gender responsive service. Write those examples. That is, मतलब I cannot stress on how important that is. ग्लोबल कोलैबोरेशन में भी कुछ कुछ लिख दीजिए. UN Women है, जैसे UN Women is working for women all over the world, so that is global collaboration, so you can write that as well, right? And then in conclusion, it is a fundamental part of India's commitment to equality and justice. और हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया, बट हमें आगे भी कुछ कुछ करना है, so that it is not merely a constitutional concept but an everyday lived experience. इसमें भी अगेन अ जनरल थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट ओवर हियर इस जो इस तरह की लाइनें होती है ना, ये तो ये याद कर लो, दो तीन. XYZ merely कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट ना रहे, बट एक एवरीडे लिव्ड एक्सपीरियंस बन जाए. ये आप जेंडर, कास्ट हर तरह से यूज कर सकते हो. इक्वालिटी, जस्टिस जो है सब कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट की जगह हमें एक एवरीडे लिव्ड एक्सपीरियंस की तरह चाहिए हमें, क्योंकि दैट XYZ कैन बी एनीथिंग एंड इट विल सेव यू अ गुड 10 seconds इन योर एग्जाम. सो माय एडवाइस वुड बी कि ऐसे दो तीन सेंटेंसेस याद कर लो. इसमें आप DPS भी लिख सकते हो. इसमें अगर आप जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हो तो कंक्लूजन में आपको अगर कोई वो इंटरनेशनल कन्वेंशन याद हो, जैसे चलो इसमें तो नहीं अगर याद होगी, बट जैसे चिल्ड्रंस राइट्स की है, तो अबाइडिंग बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ XYZ करके लिख सकते हो, इन विच यू कैन राइट द नेम ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन. सो व्हेन यू आर कंक्लूडिंग और इंट्रोड्यूसिंग और गिविंग एनी एग्जांपल, इफ अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा हो तो हमेशा इस तरह से सोचिए. इंडिविजुअल लेवल पे कुछ हो सकता है क्या, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल आ जाएगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Explain the significance of 101 Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism? Again, हम इसमें 2 सेकंड के लिए देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो हमें सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो हमको एक 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट GST वाला जो था उसकी सिग्निफिकेंस को बताना है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि accommodative spirit of federalism in the context of this. तो ये तो हमें अपने क्वेश्चन में आंसर करना ही करना है, कुछ भी क्वेश्चन का कभी भी मिस नहीं करना है. ठीक है. सो अगेन, हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? वी विल राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वेरी ब्रीफली, देन बॉडी में सिग्निफिकेंस, कैसे वो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के accommodative स्टैंड को रिफ्लेक्ट करती है. Again, what are the issues and what is the way forward? ठीक है. तो it is mandatory that you write this. Like you have to write that the 101st Constitutional Amendment Act introduced goods and services tax in India, which exemplifies the nation's commitment to fiscal federalism. ये तो हमें लिखना ही लिखना है, ये तो मतलब पहले सेंटेंस में आना ही आना है. फिजिकल फेडरलिज्म अच्छा है. सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम लिख सकते हैं. सिंप्लीफाइंग टैक्स regime and fiscal federalism.
कुछ भी रिलेटिंग टू जीएसटी के फंडामेंटल एम्स, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म लिखा है बाय रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको एकोमोडेटिव फेडरलिज्म के बारे में बोला है, इसलिए हम ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स को इंट्रोडक्शन में लिख दे रहे हैं। अगर मान लीजिए GS3 में पूछा होता सेम क्वेश्चन तो हम नहीं लिखते रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। समझ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपका इंट्रोडक्शन एंड द होल आंसर विल चेंज स्लाइटली और मे बी मोर। ऑलराइट, now see again as I said, we have to make the examiner's life easy। तो उन्होंने सिग्निफिकेंस पूछी, हम सिग्निफिकेंस बताएंगे सबसे पहले। तो again see these are now this is a very good model answer I feel, because ठीक है, unified tax for single nationwide good GST system simplifying taxation example, इसमें हमने बताया कि कौन कौन से टैक्सेस जो है सबस्यूम कर दिए गए हैं इनटू अ सिंगल जीएसटी मेकिंग कंप्लायंस इजियर। एक्सट्रीमली गुड एग्जांपल। एंड इफ यू राइट सिर्फ अक्रॉस इंडिया तक, दैट एज कंपेयर टू राइटिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स बहुत फर्क है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्योंकि सीमलेस मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वन नेशन वन टैक्स है। इसके बाद अगर आप ये एग्जांपल लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि भाई 2% तक बूस्ट कर रहा है, या फिर अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, आपने कम से कम वो वाला डेटा तो याद कर ही लीजिए कि अभी तक कितना जीएसटी की वजह से जीएसटी रेवेन्यूज हैव गॉन अप और हाईएस्ट एवर कलेक्शन, समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट जीएसटी, सम नंबर्स की, या तो परसेंटेज कलेक्शन, या फिर इतना तो हम सबको पता होता है कि नंबर वन कंट्रीब्यूशन टू टैक्स, जो टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो जस्ट ट्राई टू पुट वन थिंग इन ईच पॉइंट। फिस्कल फेडरलिज्म, इसमें आप क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल में, वेरी इजी टू थिंक, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन या वोटिंग या कुछ इस टाइप का, कि देखो जीएसटी काउंसिल में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और जो उनका वो होता है वोटिंग शेयर होता है वो इस तरह से होता है। तो जो है देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, रिडक्शन इन टैक्स एवेजन आप लिख सकते हैं। इसमें आप देखो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे कि इनपुट क्रेडिट सिस्टम। एग्जाम्पल, इनपुट क्रेडिट सिस्टम इंसेंटिवाइजेस कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों, क्योंकि उनको क्रेडिट तभी मिलेगा जब उनके ऊपर वाला बताएगा कि हमने इतना इनको दिया है। तो इट क्रिएट्स एन ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एंड रिड्यूस एंड हेंस टैक्स एवेजन रिड्यूस होता है। तो राइट that it is because of technology driven taxation system बहुत ही बढ़िया है, and input credit system, जिसकी वजह से you are incentivized to show your taxes, otherwise तो सब कैश में ही करते रहेंगे। ease of doing business आप बिल्कुल लिख सकते हो, ई वे बिल लिख सकते हो इसमें एग्जाम्पल, ई वे बिल है ना। एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म कैसे होता है, तो इसमें स्टेट्स का पार्टिसिपेशन है, जैसे ये यहाँ पे देखिए जीएसटी काउंसिल आ गया, इसमें आप लिख दीजिए कि क्या थोड़ा जीएसटी कॉम्पोजिशन, जीएसटी काउंसिल है कॉम्पोजिशन की बात कर दीजिए, कोई आर्टिकल दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में से कि जीएसटी काउंसिल का ये आर्टिकल है जिसमें इसकी ये मैंडेट है। स्टेट ऑटोनॉमी जो है, स्टेट जीएसटी जो है वो स्टेट्स रिटेन कंट्रोल ओवर देयर टैक्सेशन पॉलिसीज विद इन द जीएसटी फ्रेमवर्क, बिकॉज स्टेट जीएसटी इज विद स्टेट जीएसटी, राइट, सो इज विद द स्टेट्स, सो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, एडिशनल टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं उनके यूनिक नीड्स के हिसाब से, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आप एडिशनल टैक्स लगा सकते हो पेट्रोल पे, जैसे आपको अगर नहीं याद आ रहा तो ऐसे सोच के देखो कि सब कुछ भी नहीं आया है जीएसटी के अंदर, कुछ कुछ चीज अभी भी स्टेट के अंदर है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि सब कुछ भी जीएसटी में नहीं डाल दिया है, उसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म भी बताया गया था इसमें, यहाँ पे आप फैक्ट भी डालिए कि कितना परसेंटेज टिल व्हाट ईयर्स जो है हमने बोला था कि हम देंगे टू कॉम्पनसेट। आई थिंक इट वाज, हाउ मेनी इयर्स वाज इट, 5 इयर्स और 7 इयर्स, जितना भी था आप देख लीजिए, कितना परसेंटेज ग्रोथ पे था वो भी आप देख लीजिए, ब्रश अप कर लीजिए, वो लिखिए इसमें कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म में। ठीक है, लोकल नीड्स आप लिख सकते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल ये दिया है कि रीजनल डिस्पैरिटीज बाय अलाउइंग स्टेट्स टू रेज देयर ओन रेवेन्यूज थ्रू एसजीएसटी, हमने पहले भी बात करी थी।
ठीक है, नाउ इफ वी कैन कम टू चैलेंजेस, तो 6-7 पॉइंट दे दिए, बहुत है। नाउ हम वी कैन कम टू, इसमें इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, क्योंकि जैसे इसमें एग्जांपल आईजीएसटी का बहुत अच्छा था, क्योंकि कंज्यूमिंग स्टेट्स में जीएसटी लगती है, तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है उस उनको प्रॉब्लम थी इस चीज से। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा। सो उनको आईजीएसटी के सिस्टम से थोड़ी इशू होगी ना, क्योंकि उनका तो प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो आप ये लिख सकते हैं रेवेन्यू डिस्पैरिटीज, कि अभी जो है जितना रेवेन्यू है उससे कम हो जाएगा, तो स्टेट्स को पोटेंशियल रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाएगा। इसमें भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जब भी आप स्टेट फाइनेंसेस, फॉर एग्जांपल स्टेट्स फाइनेंस एक्स परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर थ्रू देयर ओन टैक्स, वो कम है, और वो और कम नहीं होना चाहिए। स्टेट्स शुड हैव मोर मनी एट देयर डिस्पोजल फ्रॉम देयर ओन टैक्सेशन। सो यू कैन राइट एक्स परसेंटेज ओन टैक्स रेवेन्यू, किसी भी स्टेट का लिख दीजिए, एवरेज भी लिख सकते हैं। आईजीएसटी फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर स्टेट्स वर्सेस कंज्यूमर स्टेट्स, है ना। सेंट्रल डोमिनेंस है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज नॉट टिल्टेड, उसमें सेंट्रल सेंटर का जो है उसका उसके कॉन्फिडेंस के बिना आप नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं। कंप्लायंस इश्यूज में ठीक है, क्योंकि इतने डाइवर्स स्टेट्स हैं, नया टेक्नोलॉजी आया है, जीएसटीएन पूरा नया चेंज हुआ है, इतने सारे लॉस चेंज हुए हैं, तो कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं, एंड दैट कैन स्लाइटली रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लिखना जरूरी है। तो वे फॉरवर्ड में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखेंगे कि जीएसटी काउंसिल जो है, दो उसकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए हैं, उन मीटिंग्स में स्टेट्स की बात सुननी चाहिए है, ऐसे करके 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। इनहैंस रेवेन्यू शेयरिंग, फेयर होना चाहिए मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शेयर्ड मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका इतना आता इतना आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड बी कॉम्पनसेटेड। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आई थिंक जीएसटी एपेलेट बॉडी भी एस्टेब्लिश हो गई है रिसेंटली इन द पास्ट 2 years, so if you have that example कि जीएसटी एपेलेट, but I don't think that is for center state, देख लीजिएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी बेटर, ऐसे करके पॉइंट्स लिख दीजिएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एग्जाम्पल्स। एंड देन इन कंक्लूजन वी कैन से कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो दैट वी कैन अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसे करके कुछ इंडिया का कोई भी इकोनॉमिक एम जो है वो आप इस कंक्लूजन में लिखिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या जो भी है, हाईएस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी या जो भी कुछ भी एम लिखिए, एंड देन राइट हाउ जीएसटी विल help us achieve that aim, so that this conclusion can also become slightly more substantive, right? ठीक है। So yes, this brings us to the end of the 5 questions that we had to discuss for polity. So hopefully this has been helpful, and अगर किसी को कोई doubts है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ इन जनरल आंसर राइटिंग को लेके या मीन्स को लेके, you can just write your questions in the chat, या जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे उसमें कोई डाउट हो। सोच लीजिए आप, 1 मिनट ले Good afternoon, लीजिए। ma'am. हाँ जी, गुड आफ्टरनून। Yes, ma'am. Ma'am, in question number 2, where it was mentioned that the legislature uphold executive accountable. So, ma'am, we have to write points related to interference of legislature in executive. मतलब लिख, इन्होंने पूछा है कि बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव को थोड़ा कंट्रोल में रख सकता है। Yes, तो ma'am. ये वो चाह रहे हैं कि और व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट जिससे ये हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात होगी, फोकस तो आपका इसी पे होगा कि लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल में रख सकता है, एंड ऑब्वियसली उससे सेकंड पार्ट जो
डायरेक्टली फ्लो करता है कि ये मतलब इसमें लिमिटेशंस। अगर आपके पास उसके बाद भी स्पेस और टाइम हो तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको लिखना हो 1-2 लाइन में आप लिख सकते हो कि ओवर रीच ऑफ लेजिस्लेचर, but it is not like required per se. What the question is asking is how the legislature is ensuring executive की accountability. So it is in a positive sense. Ma'am, for executive, you can write like impeachment of president and like council of minister and advise the president, Article 74. अच्छा, ओके, दिस साइड। हाँ, आप इसका ना इसका आप ऐसे कर सकते हो कि डायग्राम बना दो कि आप लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का तो आप सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर ही रहे हो कि कैसे कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूटिव को। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप ये डायग्राम बना दीजिए, उसमें एग्जीक्यूटिव से फिर लेजिस्लेचर की तरफ से 2-3 एरोस बना दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा ब्रीफली लिख दीजिए कि दिस इज हाउ एग्जीक्यूटिव कैन ऑल्सो have an effect on legislature, so it will make it more rounded. So that's a good point, you can do that, but don't spend too much time on it. So just explain it through a diagram. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Anything else? हाँ जी, बताइए। Ma'am, questions like gender justice where content is more but word limit is less. So should we focus more on incorporating more points or just writing 2-3 points and then explaining those points? आई वुड से कि अगर जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जेंडर जस्टिस का, मान लीजिए, तो 10 मार्क्स में आप 10 पॉइंट तो लिखना ही है, तो आप उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि जैसे जेंडर जस्टिस आपने लिखा, उसके बाद आपने जरूरी आप लिखे उसको, बट एक पॉलिटिकल के 2-3 लिख दीजिए, इकोनॉमिक जेंडर जस्टिस के 2-3 लिख दीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा आपका आंसर थोड़ा वेल राउंडेड रहे। तो आपका 10 मार्क्स का है तो आप 10 पॉइंट लिखो, बट 3 पॉइंट, ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट एक ही जैसे हैं कि सारे के सारे मान लो हमने इकोनॉमिक जेंडर जस्टिस पे लिख दिए, ऐसा नहीं। 2 पॉइंट एक तरह के, 2 पॉइंट एक तरह के, 2 पॉइंट एक तरह के, इस हिसाब से। सो लाइक माई पर्सनल प्रेफरेंस वाज कि कवरिंग मोर नंबर ऑफ डायमेंशंस, बट मैं एक पॉइंट में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती थी, मतलब मेरा पॉइंट थोड़ा छोटा होता था, उसमें मैं एग्जांपल डाल के उसको सब्सटेंशिएट कर देती थी। जहां पे आपको एक्सप्लेन करने का लग रहा हो ना कि यहाँ एक्सप्लेन करना चाहिए, वहां पे इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एक्सप्लेनिंग इट, ट्राई एक्सप्लेनिंग इट थ्रू एन एग्जांपल, आपका टाइम भी बच जाएगा और इट विल लुक बेटर। Okay, ma'am. Thank you. ओके, ओके, ठीक है देन। आई थिंक दीज आर all the questions that we had. Okay, so I hope that this was helpful, and इसके आगे भी अगर आपको कोई doubts वगैरह हो तो I am sure that your mentors at Path Jyoti या जो भी आपके mentors हैं, they can help you through that. Just remember that all you have to do is like have a look at the syllabus, cover everything that is in the syllabus, do a lot of answer writing, do a lot of feedback checks कि आप जो लिख रहे हो वो सही है कि नहीं है, अगर नहीं सही है तो try to improve on that. Do not take a lot of stress कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, वो कैसे करना है। सब कुछ धीरे धीरे सिस्टमैटिकली करते जाइए, जहां आपकी गलतियां हो रही हैं वहां ठीक करते जाइए, टेस्ट लिखते जाइए, एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। लाइक देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। ठीक, ऑलराइट, ओके, चलो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड ऑल द बेस्ट।